रिक्वेस्ट। सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। मैं आपके टिकटॉक वीडियोस देखती हूँ, आप इतने बड़े टिकटॉक स्टार, यू सो गुड एट दैट। I'm very scared of coming on TikTok because there is no way I'd be able to match up to anything that everybody does on it, especially you. हाँ, एक रिस्क है, मतलब उस पे मैं गालियां भी खाता हूँ क्योंकि आई एम ए क्रिकेटर। तो लोग बोलते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, बट दे हैव टू अंडरस्टैंड इन ड्यूरिंग लॉकडाउन आई कांट प्ले क्रिकेट। दिस इज द ओनली वन And टाइम come on, पास आई we're कैन humans डू। first of all, so we're all allowed to have some fun. Yeah, this is a fun, is a good fun. I'm enjoying, my family enjoying, and my fans enjoying. That's it. So, you see, before you came in, you just saw a couple of questions. So, let's just answer them firsthand. One question was very funny. Who do you think is a better batsman between you and Bumrah? Me only. You can see our You? stats. You can see our stats. Yeah, that's true. That is true. The other one is that your take on women's cricket, because it just happened and I was hosting it, so somebody's asked that. No, it's our movement cricket is improving day by day. If you've seen, we are in the finals of the World Cup, uh, and there's so many players. They are playing BBL, Big Bash League. It never happened before. And Harman, Smriti, Jamia, and I forget that girl name, the leggy. Whenever I get time, I watch the highlights for sure. And Yeah, during the we were in New Zealand and we watched all most of the matches during the World Cup. So yeah, it's a yeah. good thing, and we are happy. Our women cricket team is coming top of the most of the countries. And Aditi just asked you that which is your favorite stadium to play in the world? Chinnaswamy, no doubt. Absolutely. Yeah. So what do you keep, what's keeping you busy during the lockdown? Cricket nahi hai, Uh, like you very rightly said. Apart from TikTok videos, what else? for me, is my sleeping pattern totally changed. I'm sleeping in the morning like 6 or 7 o'clock, and I'm waking up three Let me give o'clock. you a high five on that. So I don't because it's happening first time because I can't go out, I can't do anything, I can't do my cricket practice, and that's why I sleep late and wake up late. I play PUBG. I will talk to my friends from the house party app. We couple of other things we do. So yeah, there's But have nothing. you I have you spend picked up I another spend skill? time. No, I'm just in 3 4 days I will start my working out things and all, and I'll do some challenges. I let's see, like, because there's nothing to do. Like, I just playing with my pads, nothing. All right, you see, I'm just going to start with one of the questions that a lot of fans have asked. काफी दो तीन लोगों ने पूछा है, so I'm not going to take one particular name. कि चहल टीवी का इजाद कैसे हुआ था? How did it come into being? चहल टीवी, होप यू guys रिमेम्बर वेस्ट इंडीज का T20 चल रहा था चेन्नई में, जिसमें मनीष हाँ पांडे ने लास्ट बॉल पे 1 रन बनाया था। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी काफी फनी मोमेंट था क्योंकि पांडे ने बिल्कुल फील्डर के हाथ में मारा और फील्डर से मिसफील्ड हो गया। हम्म। तो सीरीज जीते हम। तो उसके बाद बस में जा रही थी तो हमारे जो मीडिया मैनेजर है उन्होंने बोला कि यूजी आप करोगे ऐसे ही, क्योंकि मैं सबके साथ घुस जाता हूँ मस्ती में। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है करते हैं। तो उस टाइम वैसे मुंह से वैसे निकल गया चैल टीवी पे आपका स्वागत है करके। तो हम्म। फिर वो चैल टीवी वहां से स्टार्ट हो गया। तो मतलब इतना पता नहीं था कि इतना पॉपुलर हो जाएगा, क्योंकि वी डू जस्ट फॉर रैंडम स्टफ, वी जो वो लाइक मस्ती। ठीक है चलो, एक सीरियस क्वेश्चन पूछ लिया है, 2 3 फनी क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं नहीं, काफी पॉपुलर हो गया। इनफैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन तक तो ठीक है, बट एक बार चहल टीवी होना चाहिए कि today what are you going to be up to. In fact, there was इट्स another question that came in या with from another fan. In fact, yesterday I was speaking to Mayanti and I ओके। asked her, who do you think is going to be a very good anchor host presenter from the Indian cricket team post retirement? And she said Yuzvinder Chahal, absolutely Yuzvinder Chahal. And I'm actually I feel like my job is jeopardized whenever you're around No, no, because it's nothing like that. He's nothing like that. So would you want to like host a show on TV? Maybe post cricket. I love to, like, let's see, like, for how long I play cricket. It depend on that. But obviously, like, I really enjoy to, because my nature is not like that. I'm sitting at home for like, or else I'm sitting in one place for like 10 15 minutes. So if I like it, definitely I'm gonna do.
Perfect. You see, let's talk a little about your about the career that has been so far. What has been the most biggest highlight of your career? यार अब तक ये जो है ना, it's a sense of achievement that I've had. Uh, First is like when I took 6 wicket against England in Yeah, Chinnaswamy only, and yeah, in 2017 when I was the highest wicket taker in all the world in T20. So I think that point in time I've realized myself only like okay, this is on this stage you can stay and you can play longer, but yeah, you have to be like you have to perform well, and because the IPL is there in every position you can see on behind like at least 3 4 guys are there who can take your yeah, place. So you have to work a little bit harder. People know I am very funny type and I look, but I know when I'm doing my job, I'm like yeah. 200% serious about that. Yeah, absolutely. No, 100%. And this is one of the questions, another which one more fan asked, that, that the Indian cricket team obviously goes under a lot of pressure and a lot of expectations. Like 1.3 billion people have a lot of expectations, and we were all aware of that, especially when I was there around for the World Cup. And yet you managed to keep it cool, and yet to manage, you get that entertainment side of yours. How do you shift gears between that? Is one of the questions that one of the fans had. Because my nature is like I don't think too much. Like मैं इतना ज्यादा सोचता नहीं हूँ कि Huh. अगर मेरा मन है कुछ करने का मैं करता हूँ, मतलब मैं अपनी लिमिट में करता हूँ, मैं कभी लाइन क्रॉस नहीं करता। तो अगर मेरा Hmm. मन है मैं करता हूँ, क्योंकि दिस इज माय लाइफ। अगर 10 में से अगर 8 लोगों को अच्छा लग रहा है तो आई डू दैट। एंड अगर आप चीजें सोच के करते हो, आप इतना ज्यादा सोचते हो, आई थिंक आप ज्यादा प्रेशर लेते हो अपने ऊपर। Yeah. क्योंकि आप सोचोगे यार मुझे वो करना है या मुझे उस मैच में परफॉर्म करना है, वहां सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप Yeah. बिना कुछ करे ही आप आज इतना प्रेशर ले रहे हो, चाहे वो मैच 10 दिन बाद हो या 1 हफ्ते बाद हो। तो Yeah. आई थिंक मैं करता हूँ कि अभी इस लाइफ पे हूँ तो मैं ये लाइफ अपना जो चैट है ये एंजॉय करूँ। उसके बाद होगा जो देखा जाएगा, क्योंकि मैं इतना ज्यादा मुझसे सोचा भी नहीं जाता। Yeah. एब्सोल्युटली। तो आपने अभी जब इसकी बारे में बात की है कि आपका जो इंडियन टीम के अंदर सिलेक्शन हुआ, तो लेट्स गो बैक लिटिल बैक इन द हिस्ट्री। नाउ द वर्ल्ड नोज यू एंड योर द ब्लू आइड बॉय ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द बॉलिंग यूनिट। बट हुआ शुरुआत कैसे हुई? इंडियन व्हाट? क्रिकेट टीम के लिए या इंडियन टीम के लिए खेलने के लिए? 2016 में हमारा क्वालिफायर था, क्वालिफाई नहीं था, लास्ट लीग मैच था अगेंस्ट दिल्ली इन रायपुर। तो उस मैच में मुझे पर्पल कैप मिला था। तो लेट नाइट हुआ, तो सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट था। तो वीडियो एनालिस्ट है हमारे संदीप राज, जो अभी इंडियन वुमेन्स टीम के साथ है। या तो उन्होंने मेरे को ऐसे ही बोला आज इंडियन टीम आने वाली है। तो आई वाज हाँ, वेरी स्लीपी, मैं कहा ओके ओके, आई जस्ट इग्नोर्ड। हाँ, तो मुझे पता नहीं था कि मतलब आने में, नींद में था। तो फिर मैं रूम पे पहुंचा, फिर मेरे को पता लगा कि हाँ इस टाइम पे टीम आने वाला है। हाँ, तो मैं बैठा रहा, तो फिर जब टीम आया तो माय नेम वाज 16th। हाँ, तो मेरे को पहले 10 15 मिनट तो मुझे वो चीज देखने में लगा कि ये ऑफिशियल साइट है बीसीसीआई का, ट्विटर का। मैं वो देखता रहा ब्लू टिक है ये करके। तो अमेजिंग फीलिंग, क्योंकि जो 15 16 साल से मैं मेहनत कर रहा था, और ओबियसली आप खेल जो भी करते हो आप अपनी टीम को, इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहते हो उस टाइम पे। तो मैंने वो चीज कही, तो काफी इमोशनल मोमेंट था। तो 10 15 आई लिटिल बिट आई क्राइड एंड देन आई स्पोक टू माय फैमिली। तो वो भी What is थोड़ा your सा, family's reaction to this? ऑब्वियसली माय मॉम एंड डैड लिटिल बिट इमोशनल टाइप, तो थोड़ा सा वो गंगा जमुना बह गई। फिर उसके बाद सुन के लग रहा है। पता तो उसके बाद फिर हाँ हुआ। तो फिर जब मुझे पहली बार इंडियन जर्सी मिली, क्योंकि जिम्बाब्वे जाने से पहले भी यार इन मुंबई, तो वो आपको पूरा बॉक्स देते हैं पूरे। तो मुझे जब किट मिला तो मैंने कम से कम 15 20 मिनट वो किट पूरा पहना, और शीशे के आगे पूरा फुल ऑन फोटो Yeah, वगैरह ले रहा था मैं। yeah. I think, you see, आप शायद इस बात से एग्री करेंगे कि इंडियन क्रिकेट टीम में ऑफ कोर्स आना तो बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बाद और अपने करियर को आगे बढ़ाना, and then whatever cricketers go ahead and achieve, that becomes even more difficult to keep yourself stable, and to live up to the expectations that the country has from you. What do you think is the most difficult part of being a cricketer of the Indian team? आई थिंक फिजिकली एंड मेंटली हैव टू फिट 100%, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने परफॉर्मेंस नहीं किया तो माइट बी आप टीम में वापस कब आए। एंड लॉट्स ऑफ प्रेशर होता है, मतलब आप देखते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे इफ यू आर परफॉर्मिंग
people are praising you. If you are not, they Yeah. will abuse you, they will abuse your family, like Yeah. anything. तो मैं इतना मैं करता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे अब्यूज कर रहे हैं या जो मेरी फैमिली के बारे में या कुछ बोल रही है, they just have only 4 followers, 5 followers, और आई थिंक उन्होंने अपना अकाउंट इसलिए बनाया है कि लोगों को अब्यूज करना। तो वो इसमें चीज पे करता नहीं। मैं जितना भी जो भी पॉजिटिव लोग हैं मैं उनसे बातें करता हूँ, चाहे वो टीम में हो, मेरी फैमिली में हो, मेरे फ्रेंड्स हो, तो मैं उनसे ज्यादा बात करता हूँ। क्योंकि अगर आप एक बार नेगेटिव सोचते हो ना, फिर आपके अगर आप नेगेटिव लोगों के बारे में साथ बैठोगे तो आप फिर नेगेटिव ही होते जाओगे। तो उस टाइम में मेरा माइंड रहता है कि यार आई एम हेयर, मैं डिजर्व करता हूँ, मैं इसलिए यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए कि मैं यहाँ पे रहूँ। मतलब मेरा एम नहीं था कि डैड ने एक बार मुझे बोला भी था कि तुझे 1 साल इंडिया खेलना है, 2 साल खेलना है या 7-8 साल खेलना है, वो तेरे ऊपर है, तू अब आ गया है, तो अब यहाँ सरवाइव कैसे करना, यू नो बेटर। Yeah. तो उसके लिए यू हैव टू मेंटेन, यू नो। मैं अब जिम वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आई एम नॉट 23-24, आई एम टर्निंग 30 नाउ। तो उसमें आपको यू हैव टू टेक केयर। मैं खाना नाउ आई एम टर्न वेजिटेरियन, तो उससे क्या कि आई ईट मोर वेजीज। तो थोड़े टाइम पे आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि नाउ यू हैव टू compete विद द एज ऑफ 24, 25, 23। Yeah. तो जो आपको अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो हमेशा आपको ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेगा। वो एक प्रेशर पे है, वो डिपेंड करता है कि आप अपने ऊपर कैसे लेते हो। बिल्कुल, और इनफैक्ट आपके सारे फैंस बोल रहे हैं that we are with you, Yuzi, we love you, Yuzi. इनफैक्ट इंडिया के बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर has just joined us. His name is Mukesh Chhabra. He's saying that हाय Yuzi, मुकेश भैया। yeah, Yuzi are my favorite, so you definitely know him. So yeah, he's like. So Yuzi, according to you, who's the most destructive batsman, and has he ever scared you? That इनको face करना is a little difficult. ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन सम टाइम होता है कि जब वो अगेंस्ट खेलते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स सर है, मैं कभी रोहित भाई के अगेंस्ट खेला हूँ। आई थिंक T20 में मैं उनको सबसे ज्यादा डेंजरस मानता हूँ, क्योंकि जब उनका Yeah. अगर 15 से 20 रन बन गया तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि वो खुद आउट हो जाए तो आउट हो जाए। तो आई थिंक T20 में उनको मानता हूँ, क्योंकि और काफी प्लेयर्स हैं मतलब जिनको आपको सोच के बॉल करना पड़ता है, क्योंकि आई एम लकी कि 4-5 प्लेयर मेरी टीम में ही है, तो ज्यादा इसलिए थोड़ा बच जाते हैं। पर है, क्योंकि आई थिंक मैं वो सोचता नहीं हूँ कि यार मेरे को ये बैट्समैन बहुत ही, हाँ ऑब्वियसली दे आर वेरी ग्रेट बैट्समैन, पर मैं उनके बारे में इतना नहीं सोचता हूँ। मैं अपनी बारी जो मेरी स्किल्स है मैं उन पे ज्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि अगर आपने सोच लिया कि यार ये बैट्समैन बहुत मारता है या इतना स्ट्रॉन्ग है, तो ऑटोमेटिकली आपने बॉल डालने से पहले खुद पे ही प्रेशर ले लिया। तो वो चीज मैं सोचता नहीं। मुझे पता है कि मेरे पास 6 बॉल है, उनके पास 1 बॉल है, अगर मुझे छक्का लग भी गया कोई बात नहीं, स्टिल आई हैव 5 balls लेफ्ट। तो प्रेशर देखा जाए तो बैट्समैन पे भी होता है, क्योंकि वो भी हाँ, अपनी बिल्कुल, कंट्री के हाँ, लिए खेल रहे होते हैं, उन्हें भी रन बनाने होते हैं। हाँ, हाँ, तो उस चीज को आप कैसे रीड करता है, आई थिंक आपको एक अच्छा बॉलर तभी बनाता है जब जितना जल्दी आप बैट्समैन को रीड कर लो। राइट, वो चीज मैंने माही भाई से सीखी है, वो जो विकेट के पीछे जो मुझे कुलदीप को बताते थे माही भाई, क्योंकि आधा काम हमारा वैसे ही आसान हो जाता था, क्योंकि आप वरना आप आते हो विकेट रीड करते हो 1-2 ओवर में आपको या बैट्समैन क्या है, तो माही भाई हमें पहले ही बता देते थे यार ये विकेट ना ऐसे खेलेगा और ये बैट्समैन थोड़ा ऐसे खेलेगा। तो मैं और कुलदीप उस चीज को फॉलो करते थे, और दैट्स व्हाई उनके अंडर हमें काफी सक्सेस मिली है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट जब ये तो एक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात है, जब से अभी इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट ऑफ कोर्स बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है जब इंडियन टीम एज अ होल परफॉर्म ना करे, और स्पेशली जब ये इतने सारे एक्सपेक्टेशन से इस वर्ल्ड कप से दैट हैपेंड इन 2019। सो व्हाट डज बिकम एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इन गेटिंग द टीम्स होप्स अप एंड टीम्स मोटिवेशन अप? मैं तो ये, क्योंकि अगर आप देखोगे पूरी इंडियन टीम में 1-2 ही सीनियर्स ज्यादा है, मतलब बाकी सबका है 30, 27, 26 ऐसे ही। तो एक तो हमें फील नहीं होता कि यार कोई बहुत ज्यादा सीनियर है, और क्योंकि जो अगर सीनियर होता है वो हमें रियलाइज भी नहीं कराता कि यार हाँ मैं सीनियर हूँ, चाहे वो माही भाई थे या शिखी भी आए, विराट भी आए, रोहित भी आ, या कोई भी आप सीनियर आप ले लो, तो एक चीज आई थिंक वो एक प्लस पॉइंट है। और हम एक दूसरे की परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं, चाहे आप खेल रहे हो चाहे नहीं खेल रहे हो। और अगर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे पता है कि पूरी टीम पूरी मैनेजमेंट आपके साथ है, कोई बात नहीं, अगर परफॉर्मेंस हुआ नहीं हुआ हर बार आप नहीं कर सकते। और ऐसे इंडिविजुअल अगर मैं खेलता हूँ तो मेरा रहता है यार आई एम ए बॉलर, और मुझे मेरा रोल क्या है टीम में, और मुझे किस टाइम मुझे बॉल करना है, उस टाइम सिचुएशन क्या है, या मेरे कैप्टन उस टाइम मुझे विकेट के लिए जाने देते हैं या मुझे रन रोकने हैं। तो आई थिंक आपको अपना रोल बहुत पता होना चाहिए, क्योंकि इट्स नॉट इंडिविजुअल गेम,
आपको पूरे 10 लोग लेके चलने हैं, तो टीम को क्या नीड है, तो आई थिंक हम उस पे ज्यादा फोकस करते हैं कि मतलब टीम को आपसे क्या चाहिए, सेट ऑफ इंडिविजुअल। ऑलराइट, तो सिंस यू मेंशन कि हम लोगों का भी परफॉर्मेंस एंजॉय करते हैं बाकी क्रिकेटर्स का, whose performance do you enjoy the most? कि अगर ये क्रीज पे आए, इनकी बैटिंग तो जरूर देखनी है, इनकी फील्डिंग जरूर देखनी है, इसकी बॉल जरूर देखनी मतलब मैं मुझे फील्डिंग में अगर मैं होता हूँ तो मेरे को, अगर मैं नहीं खेल रहा होता तो मेरे को जड्डू भैया की फील्डिंग बहुत मजा आता है। है। और बैटिंग में ऑब्वियसली अगर देखे तो सारे केएल राहुल है, विराट भैया, मतलब मुझे सबका मजा आता है क्योंकि सारे ने, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई और आराम आराम से इंटरनेशनली? खेले। इंटरनेशनली मुझे मैक्सवेल का बैटिंग काफी पसंद है, और डिकॉक का मुझे काफी पसंद है, क्रिस गेल का मुझे पसंद है, रसल तो सिर्फ देखने में ही पसंद है। बॉलिंग में तो बहुत पिटाई होती है। तो मतलब काफी लोग हैं जो देखने में मुझे मजा आता है। अभी सबसे ज्यादा जो मुझे अभी जो बैटिंग में मजा रिसेंटली मुझे आने लगा है, वो निकोलस पूरन का है, क्योंकि उसको या देख के लगता नहीं है कि वो वेस्ट इंडीज में एक आई थिंक सबसे पतला सा होगा, लेकिन वो इतने लंबे छक्के मारता है, मतलब उसका बैटिंग देख के मुझे काफी मजा आता है। बिल्कुल। और बॉलिंग? बॉलिंग में मोस्टली मैं अभी ताही भाई ने, मोस्टली मैं लेग स्पिनर को ज्यादा देखना पसंद करता हूँ। और